آداب، یہ اعتماد کی خبریں۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے سلسلے میں ایک نیا انکشاف، 2 ماہ قبل بم رکھے جانے کی اطلاع، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ دہلی کوچنگ سنٹر واقعے کی تحقیقات سی بی آئی کے حوالے، دہلی پولیس کی تحقیقات پر عدالت نے اٹھائے سوال۔ الیکٹورل بانڈز معاملہ، عدالت نے ایس آئی ٹی کے ذریعے تحقیقات کروانے کی درخواست کو کیا مسترد۔ شہروں کے ناموں کی تبدیلی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں مسترد، عدالت عظمیٰ نے کہا حکومت کو ناموں کی تبدیلی کا حق۔ عتیق احمد اور اشرف کے قتل معاملے میں پولیس کو ملی کلین چٹ، جوڈیشل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ حکومت کے حوالے۔ شہر حیدرآباد میں رات 1 بجے تک دکانوں اور ہوٹلوں کو کھلی رکھنے کی اجازت، جناب اکبر الدین اویسی کے مطالبے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کا اعلان۔ اور آندھرا پردیش میں بارش کے دوران قدیم مکان منہدم، ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے سلسلے میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے۔ ان کی ہلاکت سے متعلق پہلی خبر یہ آئی تھی کہ تہران میں ان کے گھر پر اسرائیلی میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ تاہم تازہ ترین اطلاعات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی موت بم دھماکے میں ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا قتل ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے، جس کے لیے 2 ماہ قبل گھر میں بم نصب کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں نیو یارک ٹائمز نے معتبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سنسنی خیز مضمون شائع کیا۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران کے پوش علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ گیسٹ ہاؤس اسلامی انقلابی گارڈز کور IRGC کے ایک بڑے کمپلیکس میں واقع ہے۔ اسے IRC اپنی خفیہ میٹنگوں اور اہم قائدین کی میزبانی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ IRC فورسز یہاں مسلسل گشت کرتی رہتی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مضمون کے مطابق اس اطلاع پر کہ اسماعیل ہنیہ اس گیسٹ ہاؤس میں قیام کرنے والے ہیں، سخت ترین سیکیورٹی والے اس عمارت میں 2 ماہ قبل ہی خفیہ طور پر ایک بم لایا گیا اور اسے کمرے میں چھپا دیا گیا تھا۔ تب سے صحیح وقت کے لیے انتظار کیا جا رہا تھا اور چہارشنبے کو ایران کے نئے صدر کی حلف برداری تقریب کے موقع پر مہمان کے طور پر قطر سے آنے والے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب ایران کے دارالحکومت تہران میں قاتلانہ اسرائیلی حملے میں شہادت کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن قائم کیا گیا ہے۔ ایران کے پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ اس دہشت گردانہ واقعے کا باعث بننے والے کسی بھی لاپرواہی، غفلت اور غلطی کے مرتکب عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ قبل ازیں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجاہد لیڈر کی روح دشمن صہیونیوں کا تعاقب کرتی رہے گی۔ واضح رہے کہ اسماعیل ہنیہ بدھ کی رات تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی دشمن کے بزدلانہ حملے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے 2 شہروں کے نام تبدیل کرنے کے خلاف دائر درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس ہرکیش رائے کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ نام تبدیل کرنا حکومت کا حق ہے، عدالت نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 8 مئی کو بامبے ہائی کورٹ نے اورنگ آباد نام بدل کر چھترپتی سمبھاجی نگر اور عثمان آباد کا نام دھارا شیو رکھنے کے ریاست کے فیصلے کو قانونی طور پر درست قرار دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کی مدافعت کی اور شہروں کے نام کی تبدیلی کو درست قرار دیا۔ اتر پردیش کے سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل کے معاملے میں اتر پردیش پولیس کو کلین چٹ مل گئی۔ جمعرات کو ریاستی اسمبلی میں پیش کی گئی جوڈیشل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں پولیس کو اس معاملے میں بے قصور قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عتیق احمد اور اشرف کے قتل کی پولیس کے ذریعے منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی اور پولیس کے لیے اس واقعے کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ پولیس کی طرف سے کسی بھی طرح کی غفلت نہیں برتی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ریاست اور پولیس مشنری کے درمیان کوئی ملی بھگت نہیں تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس دلیپ بابا صاحب بھونسلے کی قیادت میں قائم کردہ 5 رکنی کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قتل پولیس کی منصوبہ بند سازش نہیں تھی۔ کمیشن کے مطابق تحقیقات میں پولیس یا ریاستی مشنری کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔
रियासत आंध्र प्रदेश में बारिश के दौरान एक मिट्टी का मकान मुनहदिम होने के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। ये अफसोसनाक हादसा नंदियाल ज़िले में जुमा की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल ज़िले के चगलामर्री मंडल के चिन्ना वंगली गांव का रहने वाला 45 साला शेखर रेड्डी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मिट्टी के कदीम मकान में मुकीम था। गांव में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश की वजह से मिट्टी का मकान पूरी तरह से खस्ताहाल हो गया था और जुमेरात की रात देर गए मकान उस वक्त मुनहदिम हो गया जब शेखर रेड्डी अपने अरकान ख़ानदान के साथ मुहक़ाब था। मलबे के नीचे आकर 4 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त शेखर रेड्डी के अलावा इसकी बीवी 38 साला दस्तगीर अम्मा और 16 साला पावित्री के अलावा 10 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई है। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत से गांव में कोहराम मच गया। खानदान में 5 अफराद हैं। दूसरी बेटी प्रसन्ना कड़पा ज़िले के प्रदुटूर के उशोदया स्कूल में ज़ेर तालीम बताई गई है और वो इस हादसे में महफूज रह गई। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा सड़क पर ठहरी हुई लारी से बाइक के टकरा जाने के नतीजे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम ज़िले के सत्तुपल्ली मंडल के बी गंगाराम गांव में एक तेज़ रफ्तार मोटर बाइक खड़ी हुई लारी से टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन की शनाख्त 22 साला सुरेश, 19 साला वेनू और 11 साला करीम उल्ला के तौर पर की गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डिग्री की तालीम न होने के बावजूद हुकूमत ने उन्हें ग्रुप 1 की मुलाजिमत फराहम करने का फैसला किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से तैयार करदा जैब कैलेंडर के ऐलान के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत खेल के मैदान में नुमायां मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मिसाल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिराज को ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने का फैसला किया है। ग्रुप 1 की मुलाजिमत के लिए डिग्री की तालीम हासिल करना लाजमी है और मोहम्मद सिराज की तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट है। इसके बावजूद भी हुकूमत ने सिराज को मुलाजिमत देने के मामले में उन्हें डिग्री से इस्तिस्ना करार दिया है। हैदराबाद के उप्पल इलाके में एक नवी जमात के लड़के ने दूसरी जमात में ज़ेर तालीम लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की। इस वाक़े की इत्तला पर मुतासरा के रिश्तेदारों और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कारकुनों ने स्कूल के सामने एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या जुमा को उप्पल के लिटिल फ्लावर स्कूल में पेश आया। बताया गया है कि इस वाक़े का इल्म होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़के के घर वालों को तलब करते हुए उसे स्कूल से बर्खास्त कर दिया और लड़की के घर वालों को भी इसकी इत्तला दी। इस तरह स्कूल इंतज़ामिया ने वाक़े को दबाने की कोशिश की। ताहम ये खबर ताख़ीर से मंजर आम पर आई, जिसके बाद बीजेपी, कांग्रेस और दीगर तलबा तंजीमों के कारकुनों ने एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। हैदराबाद के गच्चीबोली में फिल्मों का असिस्टेंट डायरेक्टर खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त सिद्धार्थ वर्मा के तौर पर की गई है। इसे हैदराबाद की गच्चीबोली पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सिद्धार्थ वर्मा जो कोंडापुर इलाके में रहता है, उसने कई दस्तावेजी फिल्मों के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। हाल ही में इसकी मुलाकात सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली खातून से हुई। उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फिल्मों में काम दिलवाने का झांसा दिया और चारशंबे की रात अपने घर पर उसे तलब किया। उसने कोल्ड ड्रिंक में नशावर शय मिलाकर लड़की को पिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। बादअज़ां मुलजिम ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। कल इस सिलसिले में मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को ऐलान किया कि हैदराबाद में एक और बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। उन्होंने रियासती असम्बली को बताया कि स्टेडियम हैदराबाद के मज़ाफ़ात में तामीर करवाया जाएगा, जहां जुमेरात को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुजवज़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में इब्तिदाई बातचीत बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के साथ हुई थी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में खेलों के फ़रोग़ के लिए तमाम इक़दाम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम जल्दी खेलों की पॉलिसी का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि रियासती हुकूमत हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी का मुआयना कर रही है।
रेवंत रेड्डी ने जिक्र किया कि साल 2024-25 के रियासती बजट में खेलों के लिए 321 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। ये बताते हुए कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी की नकाब कुशाई आइंदा असम्बली इजलास के दौरान की जाएगी। इन्होंने अपोजिशन जमातों से कहा कि वो खेलों को फरोग देने के लिए कोई तजवीज़ पेश करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कायदे मजलिस मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर शहर हैदराबाद में रात 1 बजे तक होटलों और दुकानों को खुली रखने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। असम्बली में तकरीर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने 25 जुलाई को हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और उन्हें रात देर गए तक दुकानों को खुली रखने की इजाज़त देने की हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शराब की दुकानों और शराब खानों को रात देर गए तक खुली रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। परचून अकबर साहब ने यह कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर दैन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत के सिलसिले में एक नया इंकशाफ। 2 माह कबल बम रखे जाने की इत्तला, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। दिल्ली कोचिंग सेंटर वाकये की तहकीकात सीबीआई के हवाले, दिल्ली पुलिस की तहकीकात पर अदालत ने उठाए सवाल। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामला, अदालत ने एसआईटी के जरिए तहकीकात करवाने की दरखास्त को किया मुस्तरद। शहरों के नामों की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद, अदालत उज़्मा ने कहा हुकूमत को नामों की तब्दीली का हक। अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल मामले में पुलिस को मिली क्लीन चिट, जुडिशियल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत के हवाले। और आंध्र प्रदेश में बारिश के दौरान कदीम मकान मुनहदम, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।